Nizam Nir is here with the new lecture, History of Psychology. We are talking about the history of psychology. In a previous letter, we have studied the Greek period and the medieval period, and now we have to study Renaissance period. John Locke. Locke declared that all of our knowledge about the world derives from our experiences. In it, the mind at birth is an empty sheet of white paper, reading to be written upon by the experiences of one's lifetime. As we have studied in the introduction of psychology, that John Locke give a notion tabula rasa. Here is also talking about the tabula rasa. He said that our brain, our mind is a blank sheet when we born. So we fill that empty sheet with our experiences, of our lifetime. He believed that every idea we have originated from the two processes of sensation and reflection. अब जॉन लॉक के मुताबिक जो है वो कोई भी आइडिया जो हम ओरिजिनेट कर रहे हैं वो दो प्रोसेस की वजह से होता है, एक तो सेंसेशन है और दूसरा रिफ्लेक्शन. द नेक्स्ट इज डेविड ह्यूम. David Hume believed that the contents of the mind came only from experience and experiences could be stimulated by other internal or external events. He distinguished between impressions and ideas. Impressions were strong and vivid perception, and ideas were relatively weak perceptions. अब डेविड के मुताबिक जो है वो जो सारा कंटेंट है जो हमारे माइंड में आता है वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस भी वो जो हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल इवेंट से स्टिमुलेट कर रहा हो. इसके अलावा जो डेविड ह्यूम है इसने इम्प्रेशन और आइडियाज़ में जो है वो डिफरेंस बताया. वो इसने क्या बताया जी कि इम्प्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग और विविड परसेप्शंस होते हैं, जबकि आइडियाज़ जो है वो हमारे वीक परसेप्शंस होते हैं. इम्प्रेशंस कोई भी चीज़ जो हमारे माइंड में एक दफ़ा बैठ जाए, और आइडियाज़ जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. चार्ल्स बेल. Major observations made by physiologists that eventually give birth to the new science of psychology. In 1811, British physiologist Charles Bell introduced his concept of neural transmission. Now, जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा था, साइकोलॉजी में जो है वो इम्प्रूवमेंट, इसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आती जा रही थी. अब 1811 में जो ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट चार्ल्स बेल है इसने अपना एक कॉन्सेप्ट न्यूरल ट्रांसमिशन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था. He demonstrated sensory nerves enter the posterior roots of the spinal cord and motor nerves emerge from the anterior roots. His discovery separated nerves into the study sensation and movement. अब इसने जो वो हमारी जो सेंसरी नर्व्स है उनको पोस्टीरियर रूट्स जो है यानी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे उसने कहा है कि जी जो हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो एंटर करती हैं, लेकिन जो हमारी मोटर नर्व्स है वो हमारी एंटीरियर रूट्स जो है वो इमर्ज करती हैं. और इसके अलावा इसने जो है वो नर्व्स की जो स्टडी है उसको सेंसेशन ऑफ और मूवमेंट से अलग किया था. द नेक्स्ट इज सेंट फ्रांसिस गैल्टन. Galton's work on mental inheritance and individual differences effectively brought the spirit of evolution into psychology. He possessed an extraordinary intelligence and a wealth of new ideas. Whatever he studied, experimented or analyzed, he quantified the data and analyzed it statistically. बेसिकली फ्रांसिस गैल्टन ने जो है वो स्टैटिस्टिकली हर चीज़ को मेजर करना स्टार्ट किया था. वो जो भी चीज़ जो है उसको स्टडी करता था, या किसी भी बारे में अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या उसको अगर एनालाइज कर रहा है तो हर चीज़ को स्टैटिस्टिकली एनालाइज भी करता था. He suggested that any large set of measurement of human characteristics could be meaningfully described by two numbers, i.e. arithmetic mean and standard deviations. यानी इन दो नंबर्स के ज़रिए से हम जितनी भी जो हम लोगों ने मेजरमेंट की हुई है उसको हम मीनिंगफुली डिस्क्राइब कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ मॉडर्न पीरियड. विलियम वंडेट. He is known as the founding father of modern psychology. He established the first laboratory, edited the first journal, and began experimental psychology as a science. The areas which he investigated are sensation, perception, attention, feeling, reaction, and association. अब विलियम वंडर जो है इसको फाउंडिंग फादर कहा जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी का, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है वो जो लेबॉर्ट्री है उसको इस्टेब्लिश किया था. इसने अपना फर्स्ट जनरल जो उसको एडिट किया था.
और इसके अलावा इसने जो है वो साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटली जो है उस पर काम शुरू किया था। जो अब एरियाज़ इसने इन्वेस्टिगेट किए तो उनमें सेंसेशन आती है, परसेप्शन है, अटेंशन है, फीलिंग, रिएक्शन और एसोसिएशन है। अब इसका जो बेसिक गोल था वो था साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंटली साइंस के तौर पे मुतारिफ़ करवाना। He was actually teaching and writing about experimental psychology. He says psychologists should be concerned with the study of immediate experience rather than mediate experience. इसके मुताबिक जो साइकोलॉजिस्ट है वो इमीडिएट एक्सपीरियंस जो है उनको ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि जो मीडिएट एक्सपीरियंस है उनके। He wanted to understand this psychological process by which we experience the physical world. अब जो वंडर है ये इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि जिसके ज़रिए हम जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है उसको एक्सपीरियंस करें, उसको एक्सप्लोर करें। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली कहते हैं सेल्फ इनेट को, हमारी पर्सनल थिंकिंग, हमारी पर्सनल सेल्फ जो है उसके बारे में स्टडी जो है वो उसका मेथड इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। थैंक यू।